Okay, Assalamualaikum everyone. Hope you are well. In this video, we are going to do the chapter number 3 of business, which is enterprise, business, growth, and size. So let's begin. We are going to study in this chapter. The contents are: who is entrepreneur, benefits of being an entrepreneur, disadvantages, characteristics of successful entrepreneurs, what do government support often give the business startups, business plan, comparing the size of businesses, how the business can grow, problems of growth, and at last, why do some business fail and stay small. First of all, entrepreneur is a person who organizes, operates and takes the risk to start a new business. Basically, entrepreneur जो वो person होता है जो risk लेता है, जिसकी वजह से abilities और skills होती हैं start करने के लिए business को. So let's come towards the benefits of being an entrepreneur and disadvantages of being an entrepreneur. Benefits are that उसके पास independence होती है. He is able to choose how to use time and money, able to put down own ideas into practice, may become famous and successful in the business, and at last but not the least, may be profitable and the income might be higher than other working as an employee for another business, able to make use of the personal interest and skills. Benefits में हम लोग ये भी आ सकते हैं कि वो अपने स्किल्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट को खुद ही यूज़ कर सकता है, प्रॉफिटेबल होगा, प्रॉफिट उसको अकेले को ही मिलना है, और भी वो भी कम फेमस भी हो सकता है अगर बिज़नेस सक्सेसफुल ग्रो हो जाए और उस अकेले को बेनिफिट मिलेगा. और लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? रिस्क होता है कि मैनी न्यू एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस फेल स्पेशली इफ देयर इज़ पुअर प्लानिंग. उसके पास कैपिटल भी लेस होता है क्योंकि वो एक अलग बंदा है, एक सिर्फ एक बंदा है. अगर 2 या 3 बंदे होते तो फिर कैपिटल ज़्यादा आना था. कैपिटल एंटरप्रेन्योर विल हैव टू पुट देयर ओन मनी इनटू बिजनेस एंड पॉसिबली फाइंड अदर सोर्सेज ऑफ द कैपिटल. एट लास्ट, लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग अ बिजनेस. क्या पता उसके पास नॉलेज ही ना हो, एक्सपीरियंस ही ना हो, जैसे उठ के उसने कह दिया कि बिजनेस शुरू कर लेते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉस्ट इनकम फ्रॉम नॉट बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ अनदर बिजनेस. मतलब कि उसने वो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो मनी लूज़ कर दिया जो उसको उस काम से मिल रही थी जिसमें वो एक एम्प्लॉय था, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर है इसलिए वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. Now the characteristics of the successful entrepreneurs. Hardworking होते हैं. Hardworking, long hours and short holidays are typical for many entrepreneurs to make their business successful. Risk taker, decisions produce करते हैं जो risky होते हैं. Creative, उनका mind, उनके ideas बहुत creative होते हैं. Optimistic, looking for a forward better is future is essential. Self confident होना बहुत ज़रूरी है. Innovative, independent and effective communicator. क्रिएटिव, गोल ओरिएंटेड, सेल्फ कॉन्फिडेंट, एक्शन ओरिएंटेड. ये सारी वो चीज़ें हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को सक्सेसफुल की तरफ लेकर जाते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट डू गवर्नमेंट सपोर्ट, व्हाट डू द गवर्नमेंट support often given to the startup businesses. Government gives the business idea and the help, in which government often gives the advice and support the sessions. Premises, enterprises zones will also provide low cost premises to start up the business. Finance, loans for small business at low interest rate, grants if business started up. उसके बाद लेबर, उनको चीप लोन पे लेबर प्रोवाइड कर देते हैं. रिसर्च, गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करती है इनको? ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, कंपटीशन इंक्रीज़ हो और वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा क्रिएट करे. उसके बाद बिजनेस प्लान. बिजनेस प्लान के अंदर रिक्वायर होती है लोकेशन, बिजनेस कॉस्ट, कैश फ्लो, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड विच प्रोडक्ट्स आर टू बी सेल. Comparing the size of the business, we can compare the size of the business by 4 things. Number 1, number of the employees. Number 2, the value of output. Number 3, the value of sales. Number 4, the capital of employed. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से मतलब है कि कितने एम्प्लॉयज़ पर सेक्टर के अंदर है, जिससे कंपेयर कर बिजनेस का साइज़, जिससे कि 2 हैं. उसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट भी इसी तरह है, कितने प्रोडक्शन उन्होंने की है. वैल्यू ऑफ सेल्स, कितनी सेल्स उन्होंने की है. बिज़नेस के कंपेयर किया जाता है कि कौन साइज़ बिज़नेस का ये. और नंबर 2, कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना उसने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है बिज़नेस के अंदर. लेट्स मूव टुवर्ड्स हाउ डू बिज़नेस ग्रोथ. बिज़नेस जो ग्रो होता है वो होता है इंटरनल ग्रोथ से, एक्सटर्नल, इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एंड देन कॉन्ग्लोमरेट. ओके, इंटरनल ग्रोथ अकर्स व्हेन अ बिजनेस एक्सपैंड इट्स एग्जिस्टिंग ऑपरेशन. मतलब कि वो अपने अंदरूनी, अपने अंदर अपना कैपिटल जो होता है उसका एम्प्लॉयड उसको बढ़ा देता है, उसको कहते हैं इंटरनल ग्रोथ.
और एक्सटर्नल ग्रोथ होती है विच इससे बिजनेस एक और बिजनेस के साथ, मतलब कि अदर बिजनेस के साथ मर्जर हो जाते हैं या उसको टेक ओवर ले लेते हैं. Okay, then come towards the horizontal integration. Horizontal integration is when one firm merges with another or takes away same industry in the same stage of production. मतलब कि वो horizontal integration वो integration है जो अपनी एक फर्म दूसरी फर्म को टेक ओवर करती है, उनका सेम वे ऑफ प्रोडक्शन और सेम उनकी इंडस्ट्री हो, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. सॉरी, दैट वर्टिकल इंटीग्रेशन इज व्हेन वन मर्जेस विद और टेक ओवर वन इन द सेम इंडस्ट्री बट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. मतलब कि इंडस्ट्री सेम है लेकिन डिफरेंट प्रोडक्शन है. जैसे कि कॉपर वाइन है, कॉपर इसमें कॉपर वायर है, कॉपर वायर ने मर्जर किया है कॉपर माइन के साथ, तो ये हुआ है बैकवर्ड इंटीग्रेशन. अब कॉपर वायर ने इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के साथ कर लिया है, तो ये हुआ फॉरवर्ड. उसके बाद आ जाता है कॉन्ग्लोमरेट इंटीग्रेशन इज व्हेन अ फर्म मर्जेस विद और टेक्स ओवर अ फर्म इन अ कंप्लीट डिफरेंट इंडस्ट्री. मतलब कि कॉन्ग्लोमरेट इंडस्ट्री वो होती है जो एक फर्म बिल्कुल उल्टी, बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब कि जैसा कि मैं कपड़े बनाती हूँ और मैं मर्जर कर लेती हूँ किसी जूतों वालों के साथ, तो मेरा क्या लेना देना उसके साथ. कपड़ों के साथ करना चाहिए मुझे, लेकिन मैं किसके साथ करूँ, जूतों के साथ. इसलिए होती है कॉन्ग्लोमरेट. प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ. बिजनेस ग्रोथ की प्रॉब्लम क्या होती है. लार्जर बिजनेस इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, मतलब कि लीड टू डिस इकॉनमीज ऑफ स्केल. जहाँ वो इकॉनमीज ऑफ स्केल इंजॉय करता है बिजनेस लार्ज में, उसके साथ साथ ये डिस इकॉनमीज ऑफ स्केल भी आ जाता है कि जितनी बड़ी फर्म होगी उतना डिफ़िकल्ट होगा, पुअर कम्युनिकेशन होगी. क्योंकि बिज़नेस का ऑनर जो होते हैं वो एक दफ़ा बस ठीक है बना लिया तो वो आराम से सुकून से बैठे होते हैं, ये कुछ नहीं होगा. दिस लेड टू द डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एंड लीड्स टू पुअर कम्युनिकेशन. शॉर्ट ऑफ फाइनेंस एंड एजुकेशन इज डिफ़िकल्ट. हाँ, वाई डू सम बिजनेस स्टे स्मॉल. एक तो ऑनर सब्जेक्टिव होता है कितना कि नहीं यार स्मॉल ही ठीक है, आई कैन नॉट एबल टू बियर दिस बिग फैक्ट्री और बिग ऑनर. ओके, लेट्स कम टुवर्ड्स कैपिटल नहीं होता है, इसलिए वो बिजनेस स्टे स्मॉल है. टाइप ऑफ इंडस्ट्री द बिजनेस ऑपरेट्स इन एंड द मार्केट साइज. वाई डू सम बिजनेस फेल. ये वही वाली बात आ गई, बिजनेस क्यों फेल होता है. पुअर मैनेजमेंट, फेलियर टू पे फॉर चेंज, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, over expansion, risks for the new business startups. Okay, thank you. Hope you enjoyed the presentation. So please, if you really did, then subscribe to my channel and wait for the next video. Thank you so much. Allah Hafiz.